کہ یسوع مسیح نے متی کی انجیل اور اس کے 5 باب میں اس بات کو 14 آیت میں درج کیا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، اور جو شہر پہاڑ پر بستا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، جس کے اندر نور ہوتا ہے اس میں سے روشنی نظر آتی ہے، نکلتی ہے۔ جیسے ہمارے بھائی جگمئی بھائی ہیں، تو پچھلی مرتبہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ جگنو جہاں پر ہوتا ہے وہ چاہے اندھیرے میں ہو تو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے لائٹ نظر آتی ہے، وہ چمکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری زندگیاں بھی خداوند میں چمکتی ہوئی نظر آنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کا نور بن کر زندگی بسر کریں۔ آج کی مرکزی آیت ہے یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے اس کے 62 باب میں، اور پہلی آیت مقدسہ کو ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ یسایہ 62 باب اور اس کی پہلی آیت کو۔ سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا جی، اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، یس، جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشنی چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ خداوند کا کلام ہمیشہ ہمیں تصدیق دیتا ہے۔ جو خدا کا پلان ہوتا ہے، جو خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح سے اس بات کو ہم نے فالو کرنا ہے، ان ساری باتوں کی تصدیق ہمیں خدا کا کلام دیتا ہے۔ آج کا کلام بھی یہاں پر ہمیں اس بات کی تصدیق دے رہا ہے کہ ہمیں نور بن کر زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ صہیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا۔ خدا کہتا ہے کہ میں صہیون کی خاطر چپ نہ رہوں گا۔ خدا کی تشنگی کو ذرا اس بات میں نوٹ کرنا ہے، اس کی بھوک اور پیاس کو دیکھنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صہیون میں چپ نہ رہوں گا۔ کس پرپس کے لیے، کس بات کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں چپ نہ رہوں گا؟ لکھا ہے کہ اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، جب تک اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے۔ صداقت نور کی مانند نہ چمکے، کس کی؟ یروشلم کی۔ یروشلم میں کون لوگ تھے؟ خدا کے لوگ، اسرائیلی قوم، یہودی لوگ، اور ان کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں چپ، میں دم، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ ہر وقت کیا کرتے رہے؟ میری ستائش اور شکر گزاری کرتے رہے، اور ان کو بھوک لگے گی تو میں ان کو خوراک دوں گا، ان کی کوئی ضرورت ہوگی تو میں مہیا کروں گا، کیونکہ میں ان کا زندہ خدا ہوں۔ تو جن لوگوں کا زندہ خدا ہوتا ہے ان کی ہر وہ ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں صہیون میں چپ نہ رہوں گا، اور کہ میں ان کے اندر سچائی کو اور صداقت کے نور کو چمکتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کلام صرف اسرائیل کے لیے، یہ ہر اس مسیحی کے لیے ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی نیڈ ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ نور کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے، کیونکہ اس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا
ताकि उसके मार खाने से, उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, शिफा पा जाएं, रिहाई पा जाएं, नजात पा जाएं। आगे लिखता है खुदावंद के कलाम मुकद्दस में, इसी बात को हम लास्ट बात को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसकी निजात रोशन चिराग की तरह जलवागर। जिस बात के लिए खुदा हमें उस चिराग में रोशन करना चाहता है, लिखता है कि सेहून की खातिर मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर मैं दम ना लूंगा जब तक उसकी सदाकत नूर की मानद ना चमके और उसकी नजात रोशन चिराग की तरह जलवागर ना हो। नजात के लिए हम सब ने तौबा की कि नजात ही जलवागर ना हुए हमारी जिंदगियों से कि मैं नजात याफ्ता हूं, मैं खुदा का खादिम हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, मुझे खुदा ने अपने लिए मसा किया है, मुझे अपने लिए अलग किया है। अगर मैं पहुंचूं फिर दुनियादारी दे ही पंगियां च पैना है, नशे तमाशे हैं, नाच रंग पुठे सीधे हैं, और उनमें मैंने दिल लगाना है तो मुझे कौन निजात दे सकता है? कोई खुदा हमें मुझे निजात दे। अटल फैसले है बाइबल में, और ये कलाम हमारी जिंदगियों में ऐसे ही नहीं आ जाता कि असी सुते पे उठे हैं, ओ जी पाजी साहब आगे उठते कलाम सुनना है पैना। ये कॉलिंग है, ये आपके लिए कॉलिंग है, आपको जगाया जा रहा है। खुदा चुप बैठ नहीं सकता, वो जगा रहा है सहून को। वो यरूशलेम के लिए दम अपने जून से है, वो दम नहीं ले रहा, बेचैन है। मेरी बेटी, मेरा बेटा क्यों मुझसे दूर हो जाते हैं? क्यों अपने गुनाह को तरजीह देते हैं? क्यों गुनाह की गंदी जिंदगी में जिंदगी बसर करते हैं? वो दम नहीं ले रहा, वो बेचैन है, और वो चाहता है कि हमारी सदाकत नूर की तरह चमके और हम उस निजात को, पूरी निजात को हासिल करें। वो निजात हमारे में से जलवागर हो। तो रीजन पीछे की है, कहां पर आके वो हमारी बातों से खुदा नाराज हो जाता है, वो हमसे दूर हो जाता है, वो हमसे पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके लायक हम कोई ऐसा काम करके जब नहीं दिखा। आए जरा इब्रानियों में कुछ हाल देखते हैं इन बातों का। खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से इब्रानियों 12 बाब और उसकी 12 आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे 15 तक। बस ढीले हाथों जी और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो, यस, और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, यस, ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। यस, सबके साथ मेल मिलाप रखने यस, और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। यस, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए, कोई कड़वी जड़ टूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। ये वो बात है जिस पर खुदा ने पूरी तवज्जो करने का हुक्म जारी किया है कि कोई कड़वी जड़ हमारी जिंदगी में फूट न पड़े। कोई जड़, ऐसी कड़वी जड़ जो हमें गुनाह की तरफ, बदी की तरफ, नाराजगी की तरफ, नापाकी की तरफ और हर तरह के लालच की तरफ ना ले जाए। कड़वी जड़ ये नहीं कि खाना नहीं कोई कड़वी जड़ है,
जिंदगी के वो अमल हैं जो हमारे अंदर फूट पड़ते हैं और फिर उसकी शाखें और उसकी रूट्स हमारी जिंदगी में बढ़ते जाते हैं और वो फिर एक हमें काबू में कर लेती है। हाँ? झाड़ियों की मिसाल है ना बाइबल में, हाँ? कि कुछ राह के किनारे कुछ झाड़ियों में फेंका गया बीज है और झाड़ियों ने उन्हें दबाया। भाई ये झाड़ियां झूड़ियां जो सी उगती है ना हमारी जिंदगी में, ये हमारे अंदर वो सारी चीजों को दबा देती है, वो अपने कब्जा में कर लेती हैं, अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। वो नापाक तस्वीरें होती हैं। ये झाड़ियां कोई ऐ वालियां झाड़ियां नहीं है पौधे वालियां, ये नापाक तस्वीरें हैं, इब्लीस के मोकल हैं, इब्लीस की रूहें हैं। ये नापाक अमल करने वाली वो रूहें हैं जो हमारी जिंदगियों में, हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों में किसी भी तरीके से दाखिल हो जाती हैं। जो तो नापाकी वेखी जानी है तो फिर नापाकी दी रूहां आनियां ने ना अंदर। हाँ? जिन चीजों को, इसीलिए मैंने कहा कि आईना वो होता है जो आपसे मुखातिब है। अगर हम उसमें से कुछ सीख रहे हैं या सुन रहे हैं तो वही कॉपीराइट हो रहा है हमारी जिंदगी में। हाँ? हमारा दिल वैसा ही बनता जा रहा है। हाँ? हर तरफ से हम वही चीजें अपने अंदर अडॉप्ट करते जा रहे हैं, रिसीव करते जा रहे हैं, कोई बरकत नहीं आ रही। सदाकत सच्चाई का नूर वो है जिसमें पूरी पाकीज़गी खुदा ने हमारी जिंदगियों से मांगी है। दोबारा इसे पढ़ेंगे जी इमरान साहब, 12 से। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को क्या करो? दुरुस्त करो। हाँ, ये जो उनसे दुआ में झुकते नहीं हैं, ये ढीले हाथ उठते नहीं हैं खुदा की हजूरी में और घुटने झुकते नहीं हैं। इन घुटनों को दुरुस्त करने की, ढीले हाथों को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। आगे, और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ। जी, अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेरा ना हो, ताकि लंगड़ा बेरा ना हो, बल्कि शिफा पाए, बल्कि शिफा पाए। बेरा होने का मतलब ये है कि अपनी राह से भटक जाना, अपने टारगेट से चूक जाना, अपने ईमान से फिर जाना, अपनी पाकीज़गी को रद्द कर देना। और हमारी जिंदगियों में जब ये एक्टिविटीज एक्टिव हो जाती है कि हम जब लापरवाह हो जाते हैं, किसी बात की परवाह नहीं करते, हम अपनी मर्जी नाली मोबाइल चलन देने पुट्ठे सीधे जिधर नु चाहे बंदा ले जाए, जिधर नु चाहे अपनी सोचा ले जाए, अपनी सोचों पर कंट्रोल नहीं रहता, अपने जिस्म पर कंट्रोल नहीं रहता, अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता, अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं रहता और हर तरह की नापाकी, नाराजगी, बदी हमारी बेरा रवि बन जाती है और हमें कोई भी बचा नहीं सकता दुनिया का जो आपको फिर बचा सके। एक ही है जिसने आपके लिए जान दी है, ते जे तुसी ओदे नहीं बन के रहना ते फिर तुहाडे लिए कोई होर खुदा दुनिया ते आना। वफादार माँ बाप के कितने बच्चे वफादार होते हैं जी? हा? और माँ बाप कभी आप भी बच्चा था, वो जिन्ने को अपने माँ प्यो दे वफादार सुनना उन्ने की ओदी औलाद ने भी होना। जैसा बीज बोगे वैसा ही हमारी ताबेदारी खुदावंद में कैसी है
वैसे ही हमारी औलाद की भी ताबेदारी खुदावंद में वैसी हो। ना सोचो कि मेरा पुत्र जरा ना कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा खुदा जी। जिस ईमान से आपकी जिंदगी में ईमान काम कर रहा है, उसी ईमान के एवज आपकी औलाद में भी वैसा ही ईमान काम करना है। वो आपके दर्जे से बढ़। तिमोथियस की मां, लिखा है कि यूनिके और उसकी नानी लोइस, उनका ईमान तिमोथियस में था। और जो कुछ वो उसे यीशु मसीह के मुतालिक सिखाती थी, खुदा के मुतालिक सिखाती थी, शरीयत के मुतालिक सिखाती थी, वैसा ही उसका ईमान बनता गया। और उस बात के लिए पालूस ने इस बात की फिर तस्दीक की। उन्हें कहा कि तिमोथियस, तेरे अंदर तेरी मां और तेरी नानी का ईमान है। पादरियों को पता होता कि किन्नी को मां ईमानदार है तो किन्नी को धी ईमानदार है, तो किन्ना को प्यो ईमानदार है तो किन्ना को पुत्र ईमानदार है। जिस चर्च के साथ हम रिलेटेड होते हैं ना, उस पादरी को आपके बच्चों का भी पता होता है और आपके ईमान का भी पता होता है। उससे कुछ भी छुपी ढकी नई बात होती, क्योंकि खुदा इंसान की जिंदगी में, शायद मैं इस बात के लिए अपने ऊपर तो नहीं, लेकिन खुदा के पाक रूह कुद्दूस के ऊपर जरूर फख्र करता हूं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ होना होता है वो मुझे पहले से आगाही दे देता है। और जिसके लिए मैं दुआ कर रहा था, उसकी जिंदगी में भी जो होना था उसके मुतालिक भी खुदा मुझे सिखा रहा होता, बता रहा होता। वो अलग बात है कि असी बार दफा गल करन लगे ना, थोड़ा जा झिझकने आके जे मैं सीधी गल कह दी कि भाई इथों तू ठीक होने की जरूरत है। जिन बातों के लिए खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम कर रहा है ना, आपको आगाही दे रहा, आपको बता रहा है। फाइनेंशियली तौर पे पादरी कह दे जी भैन खुदा ने तेनू इस हफ्ते बड़ी बरकत देनी है, मैंने दसिया ते भैन सारा हफ्ता ही बड़ी खुश, पादरी दे खाने भी होंदे ने, हां सब कुछ होंदे। ते जे उन्हें कहता ना भैन इत्थों तू ठीक नहीं है, खुदा ने मैंने दसिया कि तू ठीक हो जा, ते उन्हें 10 नूं दसना है पादरी ठीक नहीं है। ये पादरी ठीक, ये कलाम है जो सच्चाई बोलने के वक्त भी किसी का भी तरफदार। तो मैं कहना कि पादरियां नूं भी इंज दा ही होना चाहिए ते अगों कलीसिया नूं भी इंज दा ही समझना भी चाहिए कि अगर ये मेरे लिए कोई बात कड़वी भी कह रहा है तो मुझे इसको रिसीव करना जरूरी है, क्योंकि मैं आगे से इसमें से बाहर निकल जाऊं। कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर ना फूट जाए, है? कोई रंजिश, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत आपके अंदर अगर है तो उसका इकरार कर ले, किसी के सामने मान ले या मनवा ले कि भैन तेरी ए कमजोरी जड़ी है ना मैनू सतांदी रहती, मैं ते अपने दिल च तेरे लिए बदी नहीं रखता, लेकिन मेरे अंदर ख्याल चलते रहते हैं। वो कड़वी जड़ कहीं पे फूट ना पड़े कि मैं तेरे लिए कोई गलत मंसूबा बना शुरू करता, इसलिए मैं भी तेरे तो तौबा करना तो माफी मांगना तो तू भी माफी मांग। वो कड़वी जड़ अपनी जिंदगी में फूटने से पहले ही काट दी जाए तो वो कभी भी बढ़ और खानदान टूट नहीं सकते, मियां बीवी जुदा हो नहीं सकते, एक दूसरे में अड्डे फड्डे पड़ नहीं सकते। ये वो कड़वी जड़ है जो खुदा हमारी जिंदगियों से दूर करना चाहता है, हा? और हमारे कदमों को क्या देना चाहता है? जो लंगड़े भी हैं तो शिफा मिल जाएगी, हा? वो बेर
राह जो रास्तबाजी की राह है, जो खुदा की राह है, उसी पर ही हमें कायम रहकर चलते रहने की जरूरत है। आगे जी इसी आयत को कंप्लीट करें। सबके साथ मेल मिलाप रखने जी और उस पाकीज़गी के तालिब रहो यस, जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा, कोई खुदा को ना देखेगा। ना देखेगा। किस पाकीज़गी की बात हो रही है? यीशु ने तो लहू बहा दिता साडी जिंदगी लिए, उसने सलीब पर जान भी दे दी, उसके लहू से हम अपने गुनाहों को धो चुके हैं। अब कौन सी पाकीज़गी की बात वो कर रहा है? हा? जिन पाकीज़ा लोगों में ये मनादी की जा रही है, वो कलीसिया को तंबीह कर रहा है कि अपनी जिंदगियों पर गौर और फिक्र करते रहा करो हर रोज, है? कि कहां से हम कमजोर हैं। रिश्तों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है? मेल मिलाप की, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। पाकीज़गी के बगैर आप खुदा को, खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं सकते। हे खुदा, मुझे पाक दिल दे। हाँ? मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे, वो खुदा को देखेंगे। भाई पाक दिल आपको अपनी जिंदगी में हर तरह की नापाकी को कुचल के, छोड़ के अपनी जिंदगी को पाकीज़गी में लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। तब जाकर आप खुदा से रूबरू मुलाकात करेंगे। भाई कितने हैं जो उनसे यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं? हालेलुया। तो देखेंगे भी ना, हाँ? उसको सामने आमने सामने उसका दीदार करेंगे, तो भाई उसका फैसला है कि जो जमीन पर पाक रहेगा वही मेरी हजूरी में आकर मुझे देख। ये जमीन जो उनसी है ना, इसको मैं वर्कशॉप कहता हूँ। ये आसमानी वर्कशॉप है। जिस शख्स ने आसमान पर जाना ना, उसको पहले यहाँ पर ट्रेंड होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब तक हम उसके मुताबिक अपने आप को ढालते नहीं, तैयार नहीं करते, उस वक्त तक उस पाकीज़गी को हम अपनी जिंदगी में रख नहीं सकते। मेल मिलाप, मेल मिलाप पे मैंने पहले भी आपको कलाम सुनाया और उसमें मैंने एक आयत को कोड किया था कि हमें मेल मिलाप की खिदमत दी गई है। हम एक दूसरे से मेल मिलाप की खिदमत में सरफराज होते जाएं। वो रोशनी, वो नूर जो हमें बख्शा गया है, एक दूसरे से शेयर किया करे। कभी बह के ना कलाम दियां भी गल्लां छेड़िया, नूर की बातें, नूर चमके हमारी जिंदगियों में भी और हमारे में से दूसरों तक भी वो अक्स पहुंचे। यीशु मसीह खुदा का जलाल है। यीशु मसीह खुदा का जलाल है। इसलिए फिलिपियों बात कोड की गई है कि वो जलाल का बाप है, और जब वो जलाल का बाप है तो यीशु मसीह उसका बेटा है, और यीशु मसीह उसका बेटा होने के नाते अब्रानियों ही में इसको रकम किया गया है। जी, अब्रानियों पहला बाप, इसको हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसने उसे सब चीजों का वारिस ठहराया। यस, किस चीजों का? सब चीजों, जमीन की, आसमान की और जमीन के नीचे की भी सब चीजों का वारिस ठहराया है। किसको? खुदावंद यीशु मसीह को। आगे जी, और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए, जिसके वसीला से उसने आलम पैदा किए, वो उसके जलाल का परतो, वो उसके, किसके? खुदा के जलाल
नक्श और होकर उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया। ये वो फतह है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हासिल की, कि वो खुदा के जलाल का अक्स और उसके जात का नक्श बर्ताव होता है। उसकी उल्टी साइड, एक ही चीज की दूसरी साइड, उसको हम बर्ताव कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जी रोटी को पलट दे, रोटी ने वही है ना, शायद ही पलटनी है, वो है बर्ताव। खुदा वही है, ये उसके जलाल का बर्ताव है। खुदा एक ही है और ये उसके जलाल का बर्ताव है, उसकी शिकायना है, उसकी रोशनी है, उसका नूर है, उसका कलाम है। उसमें से कलाम निकला और वो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से हमारे दरमियान हमारी जिंदगियां, ये जिंदगियों पर अक्स हो रहा है, ये जिंदगियों पर अक्स हो रहा है, ये जिंदगियों पर नक्श हो रहा है, क्योंकि हमने भी वैसा ही बन के खुदावंद को दिखाना है जैसा खुदावंद है और जैसा उसका कलाम है। वो खुदा के जलाल का बर्ताव है तो हम उसके जलाल का बर्ताव बन जाएं, उसकी शिकायना बन जाएं, उसका नूर हमारी जिंदगियों में से नजर आना शुरू हो जाए। फिर हम दुनिया के, और जो नूर में रोशन नजर आता है वो निजात को पूरा हासिल। जिस बात के लिए खुदा सहून में, इस बात को हमने पढ़ा है यशाया 52 और उसकी पहली आयत, सहून की खातिर मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर मैं दम ना लूंगा जब तक के उसकी सदाकत नूर की मानिद ना चमके। मैं एक बात आज आपसे फाइनली कह दूं, अगर आप वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह को हकीकी तौर पर कबूल कर चुके हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को मुआफ कर दिया है, तो खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह कुदुस आपके साथ बोलने से कभी भी चुप रहे नहीं सकता। डेफिनेटली, चाहे आप कहीं पर भी छुप जाएं, दाऊद कहता है तेरी रूह से मैं बचकर अगर आसमान पर चले जाऊं तो वहां पर भी तू मौजूद है, और अगर मैं पाताल में उतर जाऊं तो वहां पर भी तू मौजूद है। तो आप मुझे बताएं कि मैं और आप खुदा से बचकर कहां जाएं? छुप छुप के कितने को गुनाह कर लेंगे। दाऊद ने एक गुनाह किया, छुप नहीं सका, उसने उसका खामंद मरवा दिया, ओदे सोरे नू भी मरवा दिता, लेकिन खुद वो छुप नहीं सका। खुदा का कलाम बोलता है तो किसी का गुनाह फिर छुप नहीं सकता। ये शुक्र है कि अभी हमारे गुनाह ढांपे गए, यीशु मसीह के लहू से हमें मुआफी मिल गई है। लेकिन आइंदा जो हम गुनाह करते हैं उन गुनाहों का हमें हिसाब देना पड़ेगा। अगर निकल आए हम रॉन्ग, अगर निकल आए हम नापाक,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ मुलाकात, अगर नजात पा चुके हैं तो फिर हमें पाक भी रहने की उसके ताबे रहने की जरूरत है, ताकि हम वैसे ही नजर आए जैसा खुदा हमें देखना। आमीन। आइए अपने स्वरों को